الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سلطان السلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر نور پہ جلوہ سادات کرام، علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، فیضان حافظ ملت سے مالا مال ہونے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے علماء کرام کے بیانات، شورا اسلام سے نورانی کلمات سماعت فرمائے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، لیکن آپ کو سب سے پہلے بتا دوں تقریباً 2 بجنے والے ہیں. دستار بندی کا مرحلہ بالکل قریب ہے. اب آپ لوگ بالکل بیدار ہو جائیے، ورنہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو، الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے. اور جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مصرے حاضر ہیں، سماعت فرمائیں. فولاد کا دل، پتھر کا جگر، سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد کا دل، فولاد کا دل، پتھر کا جگر، پارا پارا، سب پارا پارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہنگائی کا رونا وہ روئیں جنہوں نے جتایا ہے. مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں. اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 مصرے اور نہ تو حسین اعظم ٹکڑوں پہ. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں پکا دیش بھکتی ہوں، لیکن میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. کچھ بولیے، یہ میں شیطان والی نہیں ہوں، اس میں پوری قوم شامل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ، اصل زمیندار میں ہی ہوں. قبروں سے پوچھ،
اصل زمیندار میں ہی ہوں. دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا, دریا کے ساتھ وہ سمندر میں تو سمندر میں بہ گیا. مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے, ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. محترم حضرات, یہ پورے ایشیا کا جامعہ اشرفیہ کا اہم اسٹیج ہے اور ایک ذمہ دار اسٹیج ہے. علماء اہل سنت سے اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہوا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, خطبہ اہل سنت, خطیب الہند علامہ عبید اللہ خان صاحب قبلہ آسمی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ماشاء اللہ. دیکھیے ہمارے ملک میں جنہوں نے خطابت کو ایک لب و لہجہ دیا ہے وہ خطیب الہند مقرر شعلہ بار, جن کا خطاب پارلیمنٹ کے ایوان, ہندوستان کے میدان دونوں میں ہوتا ہے. وہ ذات گرامی حضرت علامہ الحاج عبید اللہ خان اعظمی تشریف لا چکے ہیں. اپنی نقاہت, کمزوری اور اس کے باوجود اشرفیہ کا اتنا خیال, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اشرفیہ کی محبت میں وہ حاضر خدمت ہیں, تشریف فرما ہیں. ادھر 2-4 مہینے سے شدید بیمار تھے. پورے ملک میں دعائیں ہوئیں. ہو سکتا ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو. آپ بھی دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ علامہ عبید اللہ اعظمی کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہمارے سامنے آپ جن کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں شہزادہ حضور حافظ ملت مخدوم گرامی شیخ طریقت رہبر رہ شریعت حضرت علامہ الحاج الشاہ عبد الحفیظ صاحب قبلہ مجدد ذی العلی والنورانی سربراہ اعلیٰ جامعہ اشرفیہ, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ جماعت اہل سنت پر تابیر قائم و دائم فرمائے. ان بزرگوں کی زیارت کیجیے. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر خدمت ہوں اور واقعی یہاں کے اساتذہ قابل ہیں اور اشرفیہ مقبول ہے. دونوں چیز یہاں پائی جاتی ہیں, قابل اور مقبول دونوں پائے جاتے ہیں. اور اب اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرفیہ کو وہ عزت, وہ وقار, وہ بلند پائیگی عطا فرمائی ہے کہ آج ہر سمت سے آواز آ رہی ہے اشرفیہ ہمارا ہے. زندہ باد زندہ باد. ارے بولو یار, محبت سے کچھ ہوں ہاں کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. آزو بازو میں چیک کرو, کوئی سو رہا ہو تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ, تاکہ جگانے کا بھی ثواب مل جائے اور سبحان اللہ کہنے کا بھی مل جائے. واہ 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 واہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ غور کیجئے, اشرفیہ کا آج وہ مقام ہو چکا ہے کہ الحمدللہ کہ چوچھا مقدسہ کہتا ہے اشرفیہ ہے ہمارا. سبحان اللہ. بریلی کہتا ہے اشرفیہ ہے ہمارا. بلگرام نے آپ کے سامنے کہا اشرفیہ ہے ہمارا. واہ واہ واہ. مہریرا نے کہا اشرفیہ ہے ہمارا. ہر سمت سے آواز آ رہی ہے اشرفیہ ہے ہمارا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات میں تو پھر آ گیا 2 سال کے بعد. یہ اتنے احسانات ہیں اشرفیہ کے میرے اوپر, ان کے اساتذہ کے 1 سال گیپ ہو گیا ہے. جی میرے بیٹے کی عالم فاضل کی دستار تھی محمد قاسم اشرفی کی, اور اس سال الحمدللہ ان اساتذہ نے میرے بیٹے کو مفتی بنا دیا ہے.
سبحان अरे اللہ प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। سبحان اللہ سبحان मैं इसके लिए असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे अपील करता हूँ। हमारे यहाँ जामिया अशरफुल मदारिस दर्दियाना कानपुर में जिन बच्चों की हम लियाकत अच्छी देखते हैं कि आगे चलकर कुछ रहबर और रहनुमा बन सकते हैं, आलिम फाजिल मुफ्ती बन सकते हैं, तो उनको भी हम रुजू कर देते हैं। जाओ अब ज़िंदगी का बकिया हिस्सा जो तालिब इल्मी का है उसे जामिया अशरफिया में गुजारो जाओ। واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ तो मोहतरम सामीन किराम, इतना बड़ा मजमा है, जो हालात हैं मुल्क के सब जानते हैं अच्छी तरीके से, सब वाकिफ हैं, लेकिन इस वक्त आप इसूस से एक पैगाम लेके जाएं कि हमें कितने सब्र, ज़ब्त और हिकमत की ज़रूरत है। हम कितने सब्र के साथ काम करें और कितनी हिकमतों के साथ काम करें, ये पूरे मुल्क को ज़रूरत है। मुसलमानों, ये मुबारकपुर से पैगाम लेकर के जाओ। मैं तकरीर कर रहा था नजीबाबाद में, अखबारी नुमाइंदे आ गए और कहने लगे, हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज लोग इस्लाम के खिलाफ बकवास क्यों कर रहे हैं? जिसको देखो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। मैंने कहा हाँ भाई, जिसे नेता बनने का शौक होता है एक क्लिप इस्लाम के खिलाफ बनाता है, सुबह से नेताजी बन जाता है। पहले हमारे बुजुर्ग बताते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, अब मसला सोशल मीडिया का है, कहते हैं खुराफात कर और सोशल मीडिया में डाल। अब ये चल रहा है, लेकिन मैंने कहा सुनो, इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो मैं शहर मक्का लिए चलता हूं। मेरा पैगंबर फौरान की चोटी से ऐलान करता है पूरे मक्के के समाज को, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना था, जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया, राहों को तंग किया गया, पत्थर मारे गए, गालियां दी गईं, मजनू पागल कहा गया, रसूलुल्लाह के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया, नबी के जिस्म मुबारक पे उजली डाल दी गई। 3 साल तक के लिए खानदान बनु हाशिम का समाजी बाइकाट कर दिया गया और मेरा पैगंबर अपने मानने वालों को लेकर उस घाटी के अंदर चला गया। ये 3 साल की मुद्दत मामूली नहीं होती। अल्लाह का रसूल उस घाटी के अंदर जब खाने पीने का सामान खत्म हो गया, पत्ते खाए जा रहे थे, किस तरीके से पेट पर पत्थर बंधे थे, मेरा पैगंबर कहता है जाओ साहबा बाहर देख लो, बाजार में कोई सामान हो तो खरीद लाओ खाने का। दुश्मनी की इंतहा इतनी हो गई कि मार्केट में गल्ले का रेट बढ़ा बढ़ा के दुश्मनों ने खरीद डाला था। साहबा वापस आए, कहा या रसूल अल्लाह, वहां तो खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं है, बच्चों के आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, होठों में पपड़ियां भी हैं। तमाम साथी बेचैन और बेकरार आके कहते हैं या रसूलल्लाह मार्केट में कुछ नहीं है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं एक बात बताओ मेरे सहाबा, अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या ख्याल है? एक जुबान होकर सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुस्तफा आपका जमाना चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह हम सब छोड़ सकते हैं, दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे गए। मुसलमानों में तुम्हें सबक देने के लिए आया हूं। सहाबा ने घेरा तो बना लिया कि नबी पे पत्थर न पड़ने पाए, मगर तारीख गवाह है किसी सहाबी ने वो पत्थर उठा के पत्थर मारने वालों की तरफ नहीं फेंका। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो पत्थर दुश्मनों की तरफ नहीं फेंका, वो पत्थर जालिमों की तरफ नहीं फेंका, बल्कि अपने सीने पे लेते रहे और सब्र करते रहे। याद रखना दोस्तों, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करो, गलती से भी तुम्हारे हाथ से कोई पत्थर ना उठने पावे। नबी ने पत्थर खाते पत्थर मारने की इजाजत नहीं दी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। हिकमतों से जिंदा रहना सीखो, बेशक सब्र जब्त का मुजाहिरा करो और गौर करो।
नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी हिकमत से, सब्र से, तदब्बुर से दीन का काम कीजिए, अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बरतानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा। जहां मुखालफत होगी इस्लाम वहां मुस्कुराता नजर आएगा। और एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, तमाम मसाजिद का इमाम यहां मौजूद होंगे। इस दौर में एक कितनी अहम जरूरत है, वो जरूरत यह है कि हमारी तमाम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं और वो लालच में, मफाद में, इस्लाम के आगोश से निकलती और बाहर होती नजर आ रही हैं। 4-4 लाख की लालच दी जा रही है कि इन कलमा पढ़ने वाली बेटियों को लेके आओ, तुम्हें 4 लाख दिया जाएगा। और ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है जिसके जरिए व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए से उन बेटियों पर डोरा डाला जाता है। मगर मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूं, ये पैगाम अपनी अपनी मस्जिदों में नश्र कीजिए कि इस्लाम से ज्यादा कोई मजहब औरत को इज्जत दे ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। याद रखो बेटियों, नतीजा क्या निकलेगा? न खुदा ही मिला, न वसाले सनम, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। इस्लाम ने जो हुकूक एक औरत को दिए हैं, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती है। इस्लाम ने औरत को इज्जत भी दी है, इस्लाम ने औरत को हक भी दिया है। आइए मैं 2 मिनट के लिए आपको सबसे पहले अरबों के यहाँ लिए चलता हूं। इस्लाम के आने से पहले इस भरे समाज में इन औरतों का हाल क्या था, कितना अत्याचार हो रहा था, कितने मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। सबसे पहले मैं आपको अरबों के यहाँ लिए चलता हूं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जुलूस पर्दे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अकालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा, उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा आफाक तहजीब में औरत पालतू बिजली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। यूनान का हालचाल यही रहा। ईरान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते हुए तूने कोड़े बरसा दिए, तो उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह ये है कि मेरे घर में पैदा हो गई। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत में धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हव्वा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत
मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है ये नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक्त नहीं, उसका मशवरा काबिले एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि ये बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। जब तक बाप के घर में थी तो बाप की तरफ निस्बत थी, शादी हो गई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा आजाद है। देखो ये औरत ही है समाज में, एक ही औरत, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने राइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये तो दुनिया औरत के बारे में ख्यालात का इजहार कर रही है। मगर आओ उस रहमतुल लिल आलमीन से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमाने अक़दस है, आपका क्या इरशाद गिरामी है? तो मेरा रसूल गुंबद खतरा से आवाज दे रहा है, अरे प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, और रसूल क्या फरमा रहे हैं कि अगर औरत माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे। मेरी तकरीर का असर उल्टा ना ले लीजिए, क्या आप सोचें यह है भारत, यहाँ यात्रा बहुत होती है, और माँ को ऊपर एक मकाम पे बांध दो और नीचे से पद यात्रा हो रही है, तो बोलो जन्नत से आ रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। माँ के कदमों में जन्नत है, ये इंडिया की बोली नहीं है, ये हबीबे किबरिया की बोली है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जिस इस्लाम ने एक औरत को इज्जत दिया है, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। बेटियों में तुम्हें बताता हूं, सुनो, इस्लाम ने तुम्हें कहां कहां इज्जत दी है, कहां कहां अजमतों से नवाजा है। चूंकि इसे एक औरत को कई दरवाजे पे जाना था, वारे इस्लाम तेरे कानून को लाखों सलाम, हर दरवाजे पे बेटी को माला माल कर दिया। जब ये बेटी बाप के घर में पैदा हुई तो इस्लाम कहता है बाप के माल में तेरा हक। वाह वाह वाह। शादी हुई, इस्लाम ने कहा शौहर के माल में तेरा हक। वाह वाह वाह। मां बनी, इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा हक। यह है इस्लाम। बेटियों समझो इस्लाम को, और मैं सबको इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं। आपको पढ़ना चाहिए। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, ये गलत मैसेज है, गलत बातें हैं। आप बताइए लोगों को, अपने पड़ोसियों से, हिंदुस्तानियों से मोहब्बत करो, इनके साथ बर्ताव भाई की तरह करो, अखलाक से पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, और बताओ कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला। वरना मुझे बताओ कि जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? अरे बोलो, तलवार कौन लिए था? उमर लिए थे। तलवार भी लिए थे, मुसलमान भी हो रहे थे, तलवार भी लिए थे, कलमा भी पढ़ रहे थे, तलवार भी लिए थे, गुलामी भी इख्तियार कर रहे थे। गए थे बड़े ताव में, जाके नबी के पास खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुनना था कि कदमे रसूल पे गिरेगा, सरकार पढ़ा दीजिए। अच्छा एक बात और सुनो, तवज्जो चाहता हूं। अरब का माहौल था कि किसी जमात में 39 आदमी हो, 40 आदमी हो जाएं तो रजिस्टर्ड बॉडी होती थी। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है ना, 11 आदमी, 7 आदमी, 9 आदमी, इसी तरह अरबों के यहाँ 40 आदमी हो जाए तो रजिस्टर्ड बॉडी। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया था और उमर को गुस्सा आ गया कि एक और पढ़ लेगा तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसीलिए तलवार लेकर के चले थे और फिजाओं में लहराते जाते थे और उमर कहते थे, अब मैं किसी को मुसलमान न होने दूंगा। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी। उमर
तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे। चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर ने कलमा पढ़ लिया। मैंने कहा उमर तलवार लेके आए थे, इरादा सही नहीं था, कलमा पढ़ने लगे। कहा हाँ, ये लोहे की तलवार थी, जिस लोहे की तलवार के मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने टुकड़े टुकड़े कर डाले। सुभान अल्लाह। ये है अखलाक। अखलाक पैदा करो, तुम अपना अखलाक दिखाओ लोगों के सामने, इंशाअल्लाह इस्लाम बढ़ता जाएगा। अखलाक दिखाने की जरूरत है। अच्छा एक बात और सुनो, हजरत उमर ईमान ले आए तो 40 हो गए बराबर, तो एक जुमला नजर कर दो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्ट्रेशन दिलवाने का नाम फारूक आजम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात सुन लीजिए, आपको कुछ पैगाम लेके जाना है यहां से, पैगाम लेकर के यहां से उठना। 4 तबके समाज के ऐसे हैं जो जल्दी से किसी के अकीदतमंद नहीं होते। एक दोस्त, साथी, क्लास फेलो कभी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। आप चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, जब आपका साथी मिलेगा ना तो बाहों में बाहें डाल देगा, कैसे है, क्या हाल है, आपको खराब लगेगा। अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं, साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो, इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना चुपचाप बैठे हुए लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद है। बोलो, बीवी जल्दी से अकीदतमंद नहीं होती एकदम माशाअल्लाह। ये जब हमारे उलमा माशाअल्लाह कॉन्फ्रेंसों में जलसों में जाते हैं, आपके घर दुआ करने जाते हैं, तो आप कितना इस्तकबाल करते हैं, नई चादर, खुशबू, आइए हजरत तशरीफ लाइए, बड़ा करम, बड़ी मेहरबानी, बड़ी इनायत, आइए मुबारक कदमों में को घर में रखिए। बोलो, लेकिन इनसे पूछना जब मैं कानपुर चला जाऊंगा, ये जब अपने अपने घर जाते हैं, कभी बीवी बोली आइए बड़ी मेहरबानी है, बड़ा करम है, बड़ी नवाजिश है, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रखिए, जल्दी से मुकद्दस कदम रखिए। बीवी बोली, बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों की अकीदतमंद नहीं होते। जो पीछे हैं, सलाम होगा सबसे आगे, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से भी तुम्हारी टांगों के अंदर से। क्योंकि बच्चियों को बड़ों की अकीदत नहीं होती। एक तबका समाज में है, इंडिया में नौकर, अरब में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कोह रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। कुर्बान जाओ मुसलमानों, समाज के ये 4 तबके, दोस्त साथी का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं, मगर कुर्बान जाओ उस इनकलाब आखिरी पैगंबर पर, कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने मर्दों में सबसे पहले जो कलमा पढ़वाया तो वो अपने दोस्त से कलमा पढ़वाया, अबू बकर से कलमा पढ़वाया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों में सबसे पहले कलमा अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से पढ़वाया। मेरे रसूल ने बच्चों में सबसे पहले हजरत अली से, आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं 8 साल से लेकर 10 साल तक की हजरत अली की उम्र है। नबी ने पूछा, अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था? हाँ या रसूल अल्लाह, ये कौन सा सिस्टम है, हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना? नबी फरमाते, अली मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। मौला अली कहते हैं पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ज़ैद इब्न आरशा गुलाम हैं, पढ़ते ही कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला दुनिया में जो किसी का अकीदतमंद नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का अकीदतमंद है। मुस्तफा जाने रहमत का अकीदतमंद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।